Next, I would like to call Mr. Masood Ali Khan, who has worked as an assistant professor in many engineering colleges, health and safety instructor in UAE. He is also an NLP practitioner and a life coach and trainer, and also a social reformer. To talk a few words on Naitik Bharat. Give him a big round of applause. Respected guests on the dais and dear children, a very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Good morning. Okay. Instead of saying Happy Children's Day, it looks like I'll have to say Happy Buzurg Day. Happy Senior Citizens Day. Okay, so many of you are so serious, all like this. You're all children, right? Or are you like adults and very grown up and old people? Or do you want me to wish you how you used to, wish your teachers in the school? Good morning, children. Can I hear a reply? Oh my God. Very few children in this hall. Come on, once again. Good morning, children. Good morning, sir. Okay. Thank you very much. Okay, so you know that the Wisdom Institute has organized this program for Children's Day. Okay, and I'll be speaking on this topic, Naitik Bharat, but I don't want to, make it a one-way talk. I want all of you to actively participate and be involved in this. And before I continue further, I would like to ask, are all of you comfortable in English? Yes. Or should I toggle between Urdu, Hindi and English? Okay, only girls are comfortable in English. What about boys? Are the boys also comfortable in English? Oh, are there any boys here? Okay. Right. By the way, one thing that I have noticed in this present gathering is that we have an overwhelming majority of girls. Okay, so it indicates how sincere girls are. So a big round of applause for girls. Okay, and then of course we have some dedicated boys, okay, who have come here. The majority did not turn up, but some of them have come here. So a big round of applause for the boys also. Okay. Now you see that we were talking about two big problems of the whole world and also our Indian society. Okay, what were those two problems? Sana mentioned the two most important problems in her speech. Amir Imam, the president of Wisdom Institute, also mentioned them. What were those two problems? Can anyone recall? Very good. Immorality and disunity. Okay, these are two major problems that are faced by the entire world also, and in our country also we are facing these two very big problems. What do we mean by immorality? Can any one of you give me the meaning of immorality? In Urdu we will say bad akhlaqi. Okay, bad character. How about giving me some examples of immorality? कुछ एग्जाम्पल दीजिए, किस चीज को इमोरलिटी बोलेंगे हम? क्विक, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड. चोरी करना एक अच्छी बात है, और इज इट इमोरलिटी? स्टीलिंग थिंग्स, रॉबरी, इज इट गुड? इज इट मोरालिटी और इज इट immorality? Immorality. Okay, so we have one, behavior that we can call as immorality. Okay, how about telling lies?
Is that morality or is it immorality? Immorality. Okay. What about disobedience to parents? Immorality. Disrespect for teachers? Okay. Fighting with one another? Okay. And are these, I have just given you a few examples, are these problems that you are able to see in the present society? दिखाई दे रहा है आपको ये प्रॉब्लम है ना? लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ ले रहे हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं. ओके, व्हाट अबाउट करप्शन? इज दैट एन ईविल ऑफ द सोसाइटी? है ना, सोसाइटी में बहुत बड़ा ईविल है करप्शन. और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी लाइक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज करप्शन. आप व्हेन यू गो टू बाय फूड, okay, do you know that food is adulterated? खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते है ना. जैसा अगर आप चावल खरीदने के लिए गए तो उसमें पत्थर डाल के, मट्टी डाल के देते, मालूम आपको? अच्छा, दूध को चूना पानी में मिला के दूध बनाते, आप लोग वो देखे वीडियो? ओके, पीपल मिक्स चूना, दैट्स अ केमिकल, वेरी हार्मफुल केमिकल, इन water and they add some more chemicals and they prepare milk. Do you know that worms are also added to milk to make it like उसको क्या बोलते हैं, चिकट बनाना और टेस्टी बनाना, मालूम है आप लोगों को? और इस तरह कितनी खाने की चीज़ों में so many like food products are there which are adulterated. इसको हम क्या बोलते हैं? adulteration. So is that something that is very moral or is that something that is immoral? इमोरल है ना. लोगों को जहर दे रहे हैं, दे आर गिविंग पॉइजन like for people to eat and we all are eating. Okay, and what is happening as a result of that? We are becoming sick, we are falling ill, we are developing so many diseases. कैसे कैसे बीमारियां हो रही हैं ना लोगों को. Okay, और फिर अब बीमारी हो गई तो क्या हो रहा? लोग इलाज करने के लिए जा रहे हैं. Okay, even there you will find some people who are very corrupt. डॉक्टर के पास जाते तो बास डॉक्टर्स क्या करते? पेशेंट्स को डरा देते. देखिए आप कभी ऐसा? ओके, दे विल स्केयर द पेशेंट्स एंड दे विल टेल द पेशेंट, ओ माय गॉड, अरे आप थोड़ा जल्दी आना था. पेशेंट डर जाता, अरे जल्दी मतलब मैं लेट आ गया क्या? हाँ, हैव आई बिकम सो लेट? व्हाट विल हैपन टू मी? और उसके फिर वो डर से वो लोग क्या करते? खेलते. They will play with the fear of their patients. They will increase the fear. Already the person will be afraid ना. कुछ बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई तो पहले से आदमी डरा हुआ रहता. लेकिन फिर अब ये लोग क्या करते हैं? वो डर को और बढ़ाते, और बढ़ा के फिर उससे खेलते. क्यों? क्योंकि उनको पैसे निकालना है ना. And there are so many like cases where we find a person is being treated for a disease that they do not have. ऐसी बीमारी का उनको ट्रीटमेंट देते हैं जो बीमारी उनको है ही नहीं. ये अच्छी बात है क्या? नहीं. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ओके, व्हाट यू आर एबल टू सी इज करप्शन. एंड आई कैन गो ऑन लाइक दिस. आपको भी मालूम है ना, आप इसमें एक एक फील्ड को आप लेते, जो एजुकेशन है, एजुकेशन की लाइन में भी करप्शन है. फीस ले लिए, बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स नहीं रखे, ठीक है, अब उनको बस पढ़ा दिए, कुछ तो भी एग्जाम्स लेके. अच्छा, आजकल एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? I mean, all of you are studying, like how many of you are from 8th standard? Please raise your hands. 8th standard, very good. Okay. 9th standard? Okay, very few from 9th. Okay. How about 10th standard? Okay, a lot of you 10th standard. Anybody else? 7th standard? Okay, 7th standard. And someone from the, like intermediate college? First year, second year? Okay, very good. How about degree college? Okay, very good. Okay, now you all are like pursuing your education. आप लोग पढ़ रहे हैं अभी. अच्छा, इसमें आप लोग ये चीज़ देखें कि अब एग्जाम्स कितने इजी हो गए. पहले से आप लोगों को एक स्लिप टेस्ट बोल के दे देते. अच्छा, वही क्वेश्चन पेपर देते जो अब यूनिट टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में आने वाला है. पहले ऐसा होता था? पहले क्या होता था? पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ के जाना पड़ता था. उसमें से कहीं से भी पूछ ले सकते थे. तो क्या होता? आपको पढ़ना पड़ता था. द स्टूडेंट्स ऑफ यस्टर ईयर्स, पुराने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना पड़ता था, पूरी तैयारी करके आते थे.
और कहीं से भी पूछते थे, और फिर अब उन्हें अच्छा पढ़ के आया, तैयारी करके आया, आंसर याद आया, अच्छा लिखा, तो फिर उन्हें पास होता था, ग्रेड्स अच्छे आते थे। अब कैसा सिंपल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, ओके, छोटे छोटे चीज़ें याद करने के लिए, वो भी जो आने वाले हैं एग्जाम में वो पहले का पहले आपको दे दे रहे हैं, तो फेल होने का चांस बिल्कुल कम हो गया। अब अल्टीमेटली बहुत बड़ा डफर है ना कोई, फिर भी फेल हो गया बोले तो, है ना। अब इसकी वजह से स्कूल का रिजल्ट कैसा आ रहा, 100% रिजल्ट, सब बच्चे हमारे पास हो गए, वो भी कैसा, सब जनों को 90% आ गया, सबको 95% आ गया, 100% भी आ गया। लेकिन एक्चुअली एजुकेशन क्या हो रहा, आपका एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा नहीं हो रहा, यानी यू डोंट हैव नॉलेज दैट यू आर सपोज टू हैव, इवन फॉर वॉट एवर करिकुलम, जो सिलेबस है वो भी आपको ठीक से नहीं आता, आपको बस कुछ क्वेश्चन रट के आप आते और आप एग्जाम देते और आप पास हो जाते, और आप यू आर बिकमिंग वेरी क्वालिफाइड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द एबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे अब आप, ये भी एक तरीके का करप्शन है, इजंट इट। आपको क्वालिफाइड है बोल के डिग्री मिल जा रही, सर्टिफिकेट मिल रहा, लेकिन एक्चुअली आपसे कुछ भी बिठा के पूछे आपको मालूम ही नहीं रहता। ओके, ये ऐसी अब ये लंबी लिस्ट है करप्शन की। ओके, ये सब किस चीज़ के अंडर में आते हैं, ये इमोरलिटी, ये जो बदअखलाकी, ओके, बैड कैरेक्टर जो लोगों का बढ़ते चले जा रहा, उसकी वजह से हर कोई ऐसा होते चले जा रहा। मैक्सिमम पीपल आर लाइक दिस। आपको मालूम है ये जो दौर है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन सा युग बोलते हैं, कलयुग। सुने आप लोग, हैव यू हर्ड अबाउट कलयुग? तो दिस एरा इज कॉल्ड एज द कलयुग, जहां पर इविल, बुराई बहुत ज्यादा है। दिख रहा ना वैसा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इमोरलिटी का, राइट। दूसरा एक और प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में भी है और हमारी कंट्री में भी है, वो है डिसयूनिटी, राइट। डिसयूनिटी, अब देखिए यहाँ पर अब एक पॉइंट को हमको समझना है। डाइवर्सिटी एक चीज होती है, ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइवर्सिटी? क्या है डाइवर्सिटी, किस चीज को बोलते हैं? सॉरी, वैरायटी, वेरी गुड। हाँ, किसी चीज में वैरायटी रहना, अलग अलग रहना, डिफरेंसेस रहना, इसको जो है डाइवर्सिटी बोलते हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिटी? सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिए, माइक देना। क्या बोले? डायलिसिस, different types of plants. Okay, very good. I would like to request you give me examples of diversity in human beings. अभी plants तो झगड़ा नहीं कर ले रहे ना आपस में, different heights, very good. कोई लंबे हैं, कोई मीडियम हाइट के हैं, कोई कम हाइट के हैं, very good. different colors, कोई गोरे हैं, कोई सांवले हैं, ब्राउन हैं, कोई काले हैं, very good. और क्या है? डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट व्हाट, थोड़ा एक एक बोलिए, हाथ उठाइए और जरा जोर से बोलिए जी। डिफरेंट कल्चर्स, वेरी गुड। आप देखो, आंध्रा का कल्चर अलग है, तेलंगाना का कल्चर अलग है, ठीक है, नवाबों का कल्चर अलग है। आप अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे ना, केरला का कल्चर अलग है, तमिलनाडु का अलग है, ओके, कर्नाटका का अलग है। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, ओके, कल्चर इज डिफरेंट, मतलब उनका पहनावा, ना, द क्लोथ्स दैट दे वेयर, द फूड दैट दे ईट, the habits that they have, all these things are different, very good. Okay, or religions are different, very good. So we have, for example, Hindu religion, okay, Sanatan Dharma we call it, okay, and any other religions you are familiar with? और कौन से religions हैं इंडिया में? Sikhism is a religion, very good. And Muslims, so Islam is a religion, okay, followers are called as Muslims, very good. और जल्दी जल्दी इतना सोचने का है क्या? Christians हैं, okay, Buddhists हैं, Jain हैं, okay, okay, are there people who do not believe in God? उनको क्या बोलते हैं जो God में बिलीव नहीं करते?
हाँ, उर्दू में बोलिए या हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक। ओके, दोज हु बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड एज आस्तिक बिलीवर्स, दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड एज नास्तिक। ओके, और वी ऑल्सो कॉल्ड देम एज एथीस्ट। ओके, एथीस्ट, थीस्ट that is believers in God, atheist means those who don't believe in God. Okay, there are people who are agnostics. एक और मतलब कैटेगरी है लोगों की जिनको agnostic बोलते हैं। agnostic का मतलब क्या है? Those who say that we don't know about God. Maybe God is there, maybe God is not there, we don't know. ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? agnostic। ठीक है, atheist बोले तो नहीं है बोल के बोल देता हूँ डायरेक्टली, देयर इज नो गॉड बोल के मान। अब ये क्या हो गया? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट like all these like keeping all these diversities in front of us. Should we fight about these diversities? अब ये जो अलग अलग है ना, भाई कलर अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, ओके, और रिलीजन्स अलग अलग है, ओके, लैंग्वेजेस हमारे अलग अलग है, कल्चर्स अलग अलग है, खान पान है ना, व्हाट वी ईट, द फूड दैट वी ईट इज डिफरेंट। तो अब ये कोई लड़ने की वजह है क्या? शुड दिस बिकम अ बेसिस फॉर पीपल टू फाइट? टेल मी। अब काले लोग मिलके ग्रुप बना लिए, गोरे लोग मिलके ग्रुप बना लिए, है ना, आपस में लड़ ले रहे लोग, अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा हुआ क्या दुनिया में? ऑल ऑफ यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, नो, मे बी इट इज देयर इन योर सिलेबस नाउ और नो, आई डोंट नो, बट डू यू नो दैट पीपल फॉट ऑन द बेसिस ऑफ कलर? सिर्फ इस वजह से कि कोई गोरा है या कोई काला है, लोग लड़के मर गए। ओके, एंड डू पीपल like discriminate and like fight because of the differences in culture? कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी लोग लड़ ले रहे हैं, लैंग्वेज के डिफरेंसेस की वजह से भी लोग लड़ ले रहे हैं, और अलग अलग ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस को बेस बना के लोग आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर ले रहे हैं। और अब ये झगड़ा और क्या हो रहा, और बढ़ते चले जा रहे। ओके, इफ यू आर फेमिलियर विद दी like न्यूज़, आप लोगों में से कितने लोग न्यूज़ देखते हैं, जरा बताइए। अल्लाह, 1 जने, 2 जने, 3 4 5 6। फॉर्मली नहीं देखते होंगे, मे बी यू डोंट टेक अ न्यूज़पेपर एंड सिट डाउन एंड like फॉर्मली रीड द न्यूज़पेपर और लुक एट न्यूज़, बट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ। लड़ाई झगड़ा इंडिया में बढ़ रहा, कम हो रहा? बढ़ रहा ना। और ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ थप्पड़ मार लेके, है ना, थोड़ा बहुत ऐसा धक्कम धक्की करके, जैसा स्कूल में आप लोग करते कि नहीं कि आई डोंट नो, आई वुड से नहीं करते होंगे, आप लोग सब शरीफ लोग दिख रहे हैं। ओके, बट यू मे हैव सीन सम फाइट्स इन द स्कूल, अदर स्टूडेंट्स फाइट, नो, वी डोंट फाइट, अदर स्टूडेंट्स फाइट। हैव यू सीन द फाइट ऑफ अदर स्टूडेंट्स? धक्कम धक्की करते, पंचा मार लेते, थप्पड़ा मार लेते, चोटियाँ खींच लेते। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं इंडिया में बास एरियाज में, ये छोटे मोटे ऐसे फाइट्स है, थप्पड़ मारने, चोटियाँ खींचने के, यू विल सी दैट दिस थिंग्स आर बिकमिंग वेरी सीरियस, है ना। ये क्यों हो रहा? ये डिफरेंसेस को झगड़े का बेस बनाने की वजह से हो रहा। पीपल आर मेकिंग द डिफरेंसेस और द डाइवर्सिटी इज एक्चुअली ब्यूटिफुल। So instead of admiring this diversity and appreciating, okay, this diversity, what are people doing? They are making it the basis for disunity. Okay, लड़ाई झगड़े का वो लोग उसको basis बना लेते। क्या ये अच्छी बात है? Is this something that is good? It should happen? Or is this something that should be stopped as quickly as possible? I don't hear any answer. क्या भाई इसको, ये झगड़े को कंटिन्यू रहने देना चाहिए, या हम भी आग में तेल डाल के झगड़ा बढ़ाना चाहिए, या जल्द से जल्द ये झगड़े को कम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए ना। कौन करना? हम सब करना, नहीं करना, राइट? तो वी शुड रिजॉल्व, हमको ये इरादा करना चाहिए कि हम करेंगे।
अब कोई दूसरे करे तो वेरी गुड, इफ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग, उन्होंने भी आके हमारा साथ दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे करने का इंतज़ार करना अक्लमंदी की बात है? इज इट अ सेंसिबल थिंग टू वेट until other people come forward to stop this chaos and stop these fights, or should we decide that no, if nobody is doing, I will stop, I will come forward? ये हमको सोचना चाहिए ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? We are constantly seeing that since very few people are coming forward to stop this disunity and fight, the fights are constantly increasing. लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं ना, किसी ना किसी को करना पड़ेगा। ओके, तो इट इज़ अप टू अस, ऑफ कोर्स, इट्स अ चॉइस, है ना। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भी करना ज़बरदस्ती है ना, कान पकड़ के करना ही करना, ऐसा नहीं। आपकी मर्जी, आप क्यों चूज करेंगे? यू विल चूज टू कम फॉरवर्ड बिकॉज यू आर मॉरली अपराइट, आपका कैरेक्टर अच्छा है ना। आप लोगों को पीसफुली, है ना, एक साथ रहने के लिए मोटिवेट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि दुनिया में पीस रहना, हमारी कंट्री में पीस रहना। अच्छा, एक और चीज़ आप ये बताइए, अगर लड़ाई झगड़े होते रहे तो विल आवर कंट्री प्रोग्रेस? कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस इफ वी कीप फाइटिंग अमॉन्ग्स्ट ईच अदर? वी कैन नॉट प्रोग्रेस, है ना। हमारी कंट्री वीक होते चले जाएंगे अगर हम आपस में लड़ते रहे। ओके, और कोई भी वीक हो गया तो आप लोगों को मालूम है लोग ऐसे रहते जिनको राउडी बोलते। देयर आर पीपल हु आर राउडीज, ओके, और बुलीज, दादा, टाइगर किस्म के लोग रहते हैं जिनको अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं मालूम रहती। वैसे लोग क्या करते, कोई भी कमजोर दिखा तो उसको क्या करते, उन्हें कमजोर है बोल के उसको भी लूट लेते। They will harm the people whom they find weak. Is that right or not? So if our country becomes weak because we are fighting internally, then what will happen? Other countries who are of that mindset, है ना, दादागिरी वाला जिसका mindset है, उन्होंने क्या करते हैं? उन्होंने आके फिर हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाते, यहाँ के रिसोर्सेज हमारे छीन लेते, या हम हमारी कंट्री में से कोई पार्ट भी जो है ले सकते हो। ले रहे भी ना, आप लोग अगर न्यूज़ से अपडेटेड है तो यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, कंट्रीज आर पुशिंग देयर बॉर्डर्स एंड दे आर स्नैचिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम आपस में झगड़ा कर ले रहे हैं, हम यूनाइटेड नहीं है, हम स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज मॉरली अपराइट। वी हैव टू इन्वाइट देम, वी हैव टू फर्स्ट मॉरलाइज आवरसेल्फ, हम खुद अच्छे बनना, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना, ठीक है, और हम यूनाइट होना, और फिर हम यूनाइट होकर दूसरों से झगड़ा नहीं करेंगे। हम कहीं भी यूनाइट हो रहे, सब एक होके हम भी दूसरों से झगड़ा करना है बोल के हम एक हो रहे नहीं। वी आर यूनाइटिंग सो दैट वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग, वी विल प्रोग्रेस, हम भी तरक्की करेंगे, और तरक्की के साथ साथ दूसरे लोग, है ना, जैसा पुलिस रहती ना, बाद लोग कैसे रहते, पुलिस को देखते हैं वो पहले से डर जाते, लेकिन बाद लोग ऐसे रहते जिनको डंडे मार के पुलिस सीधा करती रहता ना ऐसा। वो लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, दे डोंट वांट टू बिकम गुड पीपल एंड दे विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग मिस्टेक। तो मजबूरन पुलिस क्या करती है, ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ता, जेल में डालना पड़ता, है ना, डंडे से मारना पड़ता, उनको बोलना पड़ता नहीं ऐसा नहीं करना, राइट। So we will be in a position to do that only if we are strong. पुलिस वाला वीक रहा तो क्या होता, उन्हें कर सकता है ये सब अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता, पुलिस वाला स्ट्रांग है। तो इसी तरह हमारी कंट्री भी स्ट्रांग है। तो पीपल शुड थिंक नॉट ट्वाइस बट 10 times बिफोर दे इवन लुक एट इंडिया। अरे इंडिया में हाथ डालना बोले तो नहीं, ये सब यहाँ के सब लोग यूनाइटेड, isn't it? And when we are strong, we can tell others also, right? What can we tell others? Behave. Please behave. Don't go out of the boundary. ये कर सकते हैं ना, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम डराएंगे धमकाएंगे नहीं लोगों को, हम रिक्वेस्ट करेंगे, ओके, हम बोलेंगे भाई प्लीज आप भी अच्छा बिहेव करिए, बिकम अ मॉरल पर्सन, बिकम अ मॉरलाइज्ड कंट्री एंड बिकम यूनाइटेड।
और पूरी दुनिया में हम फिर ये मोरालिटी और यूनिटी को फैला सकते हैं। ओके, हाउ विल वी डू दिस? ठीक है, मैं इस पर जरी सी बात करके अपनी बात खत्म कर लूँगा। हाउ विल डू दिस? Okay. See, Sana also highlighted this point in her speech, and Amir also highlighted this point in the speech, that there are two types of education. Okay. Now, the problem that we find even more serious today is that even educated people are committing crimes. पढ़े लिखे लोग भी क्राइम कर रहे नहीं कर रहे? यानी आपको साइबर क्राइम मालूम? दूसरों के ईमेल अकाउंट हैक कर लेना, ओके, दूसरों का बैंक अकाउंट हैक कर लेके उसमें से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, ये मालूम है आप लोगों को? फ़ोन को हैक करके उसमें का इंफॉर्मेशन ले ले रहे हैं, उनके फोटोज और पर्सनल डेटा ले ले रहे हैं। कैन एन अनएजुकेटेड पर्सन डू दिस? नहीं कर सकता। अब उसके लिए क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर की टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ओके, तो unfortunately what we are seeing is that people who are highly educated are also committing crimes. और ये चीज़ प्रॉब्लम क्यों बन रही? ये प्रॉब्लम इसलिए बन रही because a lot of highly intellectual people say that education is the solution for crime. कई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि एजुकेशन लोगों के पास नहीं है इसलिए वो लोग क्राइम कर रहे हैं। आप उनको एजुकेट कर दो, क्राइम्स कम हो जाते हैं। हैव यू हर्ड दिस? तो फिर अब ये बात सही है, अगर इफ दिस पॉइंट इज करेक्ट, देन व्हाट शुड हैपन व्हेन एजुकेशन इंक्रीजेस, क्राइम शुड डिक्रीज। ओके, अब आप ये जरा सोचिए, जापान में कौन सा बम गिराए थे कई साल पहले? मालूम है आप लोगों को जापान में बम गिराए थे बोल के? कौन सा बम था? सुतली बम था। हाँ, क्या क्या फोड़े थे जापान के अंदर? दिवाली का कोई क्रैकर फोड़े थे? एटम बॉम्ब। एनीबडी रिमेंबर्स द सिटीज ऑफ जापान वेयर दीज बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड? कहाँ, कौन सी सिटी के ऊपर ये बम गिराए थे? नागासाकी एंड Hiroshima. Hiroshima and Nagasaki are the two major cities where these bombs were dropped. Who invented the bomb? Was it an uneducated person? कोई गांव वाला बनाया? नहीं, educated लोगों ने बनाए। The country which dropped these bombs on Hiroshima and Nagasaki, was that an uneducated country or was that a highly developed country? Do you know the literacy rate of the people in Kerala? You know, there's one state in our country, Kerala, right? केरला बोल के स्टेट है, मालूम है नहीं? क्या है कि अब घरों में बैठे लॉकडाउन में तो सब भूल गए कि क्या है। ओके, केरला है। केरला की लिटरेसी रेट क्या है? इट्स वेरी हाई, 99% लिटरेसी रेट। पढ़े लिखे लोग, 99% लोग केरला में पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी क्राइम रेट भी सबसे हाईएस्ट में से, सबसे ज़्यादा क्राइम केरला में हो। तो क्या हो गया? अब ये जो सोल्यूशन था, जो हमारे पढ़े लिखे लोग बता रहे थे, इंटेलेक्चुअल लोग बता रहे थे कि भाई इफ़ यू इंक्रीज पीपल्स एजुकेशनल लेवल, क्राइम्स विल डिक्रीज। तो ये क्या, ये बात गलत हो गई ना? फिर क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे? नो। व्हाट शुड वी डू? What we need to consider over here is that there are two types of education. Okay, broadly if we classify the education, there are two types. One is materialistic education. Okay, materialistic. Okay, how to operate a computer, how to develop a software, how to invent a machine. Okay, automobile engineering, aeronautical engineering. Okay, or law. Okay, fine arts, whatever. Okay, something that we can do to, you know, like make a living. Okay, we can add to the society. Okay, give some, you know, like constructive contribution, and we can also earn money. ये एक टाइप का क्या है? एजुकेशन है, मटेरियलिस्टिक एजुकेशन।
इसके साथ साथ एक और टाइप का एजुकेशन देना चाहिए था, और वो क्या है? What is the other part of the education that should have been provided? Okay, but it is missing. Okay, largely missing in our educational system. कौन सा एजुकेशन है वो? मॉरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन. ओके, पुराने ज़माने में आप अगर इंडिया में देखें, हमारी अपनी कंट्री में देखें, तो आवर एंशिएंट स्कूल्स वर कॉल्ड एज गुरुकुल्स. और गुरुकुल में दोनों टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, स्पिरिचुअल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन एज वेल एज मटेरियल एजुकेशन. वहाँ पर सिखाते थे कि पेरेंट्स के साथ में कैसे रहना, बड़ों के साथ, है ना, हाउ टू बिहेव विद योर एल्डर्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, हुएवर, रिस्पेक्ट विमेन, हाउ टू behave with your teachers. Your teachers are like equivalent to your parents. ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसी तालीम देते थे. सोसाइटी में कैसा रहना, झूठ नहीं बोलना, ये सब क्या था? स्पिरिचुअल एजुकेशन था. ये एजुकेशन दे के लोगों को मॉरल भी बनाते थे और उनको काबिल भी बनाते थे. तो anybody who becomes, like let's say a businessman, they become a moralized businessman. एक अच्छा आदमी बनता था, अच्छा बिजनेसमैन जो झूठ नहीं बोलता, है ना, जो अगर कुछ चीज़ तोल रहा तो उन्हें तोल में धोखा नहीं करता. तोल में आप लोग देखे वीडियोस, एक कवर में कस्टमर चुने सो एप्पल डालता, पहले से एक थैली रहती जिसमें सड़े हुए एप्पल्स रहते, थोड़े अच्छे भी रहते, एक दो डाल देता उन्हें रहम खा के. फिर उन्हें क्या करता है, देने के टाइम पे ऐसा ज़बरदस्त, जैसा मैजिशियन एक ट्रिक करता ना, वैसा उन्हें थैली बदल देता. हालांकि कस्टमर क्या समझता, मैं जो खरीदा, मैं तो चुन चुन के अच्छे अच्छे एप्पल लिया. और एप्पल कैसा चल रहा है आजकल? 100 रुपये में 4, 100 रुपये में 3, कितना महंगा होगा. बेचारा मैं ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लेता, लेकिन फिर घर जाके थैली खोले तो क्या होता? सड़े हुए एप्पल रहते. क्या है? इमोरल बिजनेसमैन, धोखा देने वाला. ये तो अनपढ़ कर रहा. अ पर्सन हु इज पुशिंग like फ्रूट कार्ट, एक बंडी ढकलने वाला, तो बेचारा उन्हें क्यों बंडी ढकल रहा? उन्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो लोग, लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? करोड्स के अंदर स्कैम्स कर रहे हैं. करोड्स ऑफ रुपीज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोग स्कैम कर रहे हैं, लोगों के पैसे डुबा देते हैं. इज़न्ट इट? लेकिन जब आप मॉरल एजुकेशन देंगे तो क्या होगा? उन्हें बिजनेसमैन बन गया तो उन्हें एक मॉरली अपराइट बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया. उन्हें डॉक्टर बन गया तो एक मॉरली अपराइट डॉक्टर बन गया. उन्हें टीचर बन गया तो एक मॉरली अपराइट टीचर बनेगा, है ना. एक इंजीनियर बन गया तो उन्हें एक मॉरली अपराइट टीचर और इंजीनियर बनेगा. पॉलिटिशियन बन गया तो उन्हें एक मॉरली अपराइट पॉलिटिशियन बनेगा. वो अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाएगा नहीं. बात आपको समझ में आ रही? सो दैट इज वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इन द कंक्लूजन इज, बात आपको समझ में आ रही? Do you feel any relationship or connection with this problem that we are facing in our country? Do you feel that we should do something to solve this problem? आप लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, आके कंट्रीब्यूट करने? क्योंकि ये सिंपल देखिए एजुकेशन है. मैं आपको बोल दिया कि भाई झूठ मत बोलो और सच बोलो. ओके, डोंट लाई, ओनली स्पीक द ट्रुथ. तो ये एक्सेप्ट करके अपने आप में ये चेंज लाना किसके हाथ में है? आपके अपने हाथ में है. ज़बरदस्ती तो ज़्यादा नहीं कर सकते किसी के साथ. ओके, सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड नाउ मेक दैट डिसीजन. इफ यू हैव ऑलरेडी मेड दैट डिसीजन, देन you are like highly appreciated and you deserve congratulation. ओके, अगर आपने पहले से ये तय कर लिया, आप पहले से अच्छे हैं. ओके, लेकिन अब जाहिर सी बात है, वी ऑल आर नॉट परफेक्ट. ओके, वी आर नॉट 100% गुड. ओके, बट नाउ इट इज़ हाई टाइम. ओके, क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर एक आई जस्ट गिव यू वन लास्ट एग्जांपल एंड एंड माय टॉक. इफ देयर इज अ विलेज विच हैज हट्स, झोपड़ियाँ बनी हुई है एक विलेज में, एंड ऑल द हट्स आर मेड अप ऑफ ड्राई वुड. झोपड़ी ऐसी बनती ना, ड्राई वुड से झोपड़ी बनती. किसी ने आकर कुछ कचरा जमा किया, ओके, और एक हट के करीब में जमा कर दिया, एक हट के करीब में, और उसमें उसने आग लगा दी.
Can the hut which is nearest to that, burning rubbish, can it catch fire? तो करना क्या चाहिए? पहले तो हमें आगे बढ़ के वो कचरा जलाने वाले को रोकना चाहिए, है ना, कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन अगर हम ये सोचे, अरे भाई अपना घर वहां है अंदर, बहुत दूर है, अपनी झोपड़ी बहुत दूर है, ओके, इट इज वेरी फार अवे, वी आर सेफ, और आप आगे बढ़ के उसको नहीं रोके, तो क्या होगा बताइए? पहले सबसे नियरेस्ट झोपड़ी जलने लगेगी, उसका होगा नुकसान। लेकिन वो झोपड़ी से फिर उसके बाजू वाली झोपड़ी में भी आग लगेगी, आग फैलेगी ना, द फायर विल स्प्रेड, फिर उससे बाजू, उससे बाजू, उससे बाजू, और फिर इवेंचुअली क्या होगा? पूरे गांव में आग लग जाएगी। Sooner or later every house will be burnt and then people will lose whatever they have gathered and collected in their house. पैसा होगा, है ना, फर्नीचर होगा, सामान होगा, जो भी होगा वो भी जाएगा, और झोपड़ी के अंदर, जलती हुई झोपड़ी के अंदर कोई फंस गया तो वो भी जल जाएगा। जलेगा नहीं जलेगा? So what should wise people do? Should you wait till the fire? अभी तो बहुत दूर है ना, बोल के आप बैठे रहना, या आप आगे बढ़ के जाके जिसका भी घर जल रहा, जिसकी भी झोपड़ी जल रही, आप जाके उस पर आग बुझाना। Should we do that or not? Right? So it is as simple as that. आप इंतजार में रहेंगे तो दूसरे घर जल रहे हैं आज हमारे इंडिया में, ओके, वो आग बहुत तेजी से आपके घर में भी आ जाएगी। लेकिन आपने सेंसिबल तरीके से, है ना, बात को समझा और कुछ एक्शन लिया, तो फिर क्या होगा? आप जाकर उन घरों की आग बुझाएंगे और उस तरह से आप अपने घर को भी बचा लेंगे। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू यूनाइट। ओके, सो मॉरलाइज भी होना है और यूनाइट भी होना है, राइट? सो वी हैव द बेसिस, लाइक आमिर प्रेजेंटेड दैट इन फ्रंट ऑफ यू। हम क्या बेसिस पे यूनाइट होंगे? वी विल यूनाइट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमननेस एंड द सिमिलैरिटी बिटवीन आवर डिवाइन स्क्रिप्चर्स। जैसा जिस चीज़ को हम धर्म मानते हैं, ओके, व्हाट वी बिलीव एज आवर रिलीजन, दीन, वे ऑफ लाइफ, ओके, यू ऑल शुड नो दैट द सेम वे ऑफ लाइफ हैज बीन taught in the Bhagavad Gita. Same teachings have been reminded and repeated in the Holy Bible, and the same teachings have been reminded in the Holy Quran and also other scriptures. Okay, also other divine or religious books like Sikh, they have Guru Granth Sahib. Okay, and the Buddhists, they have some other like religious scripture. Same teachings are there. So we will unite on the basis of the similarity. Okay, and we will become morally upright, we will become good in our character, and that is how we will be able to save ourselves from destruction and save others also, right? And then we will be able to unite our country and make it very strong, right? This unity and peace will bring prosperity to our country. Okay, so I hope all of you have understood the message that we are trying to convey over here. Okay, and I hope that you all will come forward and involve, right, and participate in the activities that we have here, that we hold, under the Wisdom Institute, or anyone else who's holding these good activities. Please feel free to go, and associate with everyone. Whoever is doing good, we should support them, right? So thank you very much for patiently hearing me out. Okay, happy Children's Day once again. Jai Hind.